اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. خداوند قدوس کی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. تمام شیاطین اور شرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. ایک منادی ندا کرنے والا کہتا ہے، اے نیک بختو، خوش نصیبو، اعمال صالحہ کے لیے تم کمر بستہ ہو جاؤ. رحمت بخشش کا مہینہ جلوہ فگن ہو گیا ہے. نیکیوں کی طرف آؤ، مساجد کی طرف آؤ، عبادت و ریاضت کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ. منادی کرنے والا یہ کہتا ہے کہ عبادت و ریاضت کی طرف آؤ، جنت کی جانب آؤ. ارے اے مسلمانوں، یہی وہ مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر عمل قلیل پر بھی جزائے جلیل پروردگار عالم عطا فرماتا ہے. حضرات، پھر ندا کرنے والا کہتا ہے، یا باعی الشر اقصر، اے برائی اور بدی کے چاہنے والے، برائی سے رک جا اور اس مقدس مہینے کا احترام کر کے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لے. یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کے لیے جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور اس مہینے کے روزہ رکھنے والوں کے لیے حوران جنت مشتاق ہیں. صحابی رسول حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو شروع سال سے آخری سال تک سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے. اور جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو جنت سے ایک خوشگوار ہوا پھیلتی ہے. تو حوریں جو ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر اعینہم. حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو ہواؤں سے، خوشبوؤں سے لبریز معطر اور معمر ہوائیں چلتی ہیں. تو حوریں جو ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، اپنے بندے کو ہمارا شوہر بنا، ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما اور ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما. حضرات، کتنے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ جو اللہ کا بندہ اس مہینے کا روزہ رکھے ایمان اور اخلاص کے ساتھ، تو جنت کی حوریں ان کے جوزیت میں آنے کے لیے مشتاق اور بے قرار رہا کرتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے مسلمانوں، اس مہینے کا روزہ ہمیں اور آپ کو رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ اے میرے بندو، جب تم اس مہینے کو پاؤ تو اس مہینے کے روزے کو تم رکھو. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے تسلی و تشفی کے لیے یہ بھی فرما دیا، اے میرے بندو، کہیں تم یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نے روزے کو صرف تمہارے اوپر فرض کیا، نہیں، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اور تمہارا بھوک و پیاس کا برداشت کرنا یہ تمہارے لیے فائدے مند ہے. تمہیں تقوی اور طہارت کی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں پاکیزگی حاصل ہو جائے گی، تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے. روزے کے حوالے سے اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لکل شیء زکاۃ و زکاۃ الجسد الصوم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، اور جس
जिस्म की ज़कात रोजा है। हजरात मोहतरम, जिस माल से ज़कात अदा कर दी जाए, जिस माल से ज़कात निकाल दी जाए, माल में बरकत आ जाती है, माल तैयब व ताहिर हो जाता है, वो माल पाक व साफ हो जाता है। इसी तरह रोजा जो है ज़कात बदनी है। जो शख्स अपने जिस्म की ज़कात अदा करता है, अपने जिस्म की ज़कात अदा करता है, उसका जिस्म और उसकी रूह तैयब व ताहिर पाक व मुतहहर हो जाता है। रोजादार जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और रूहानी तौर पर ताकतवर हो जाता है। हज़रात आप देखें, माल से अगर ज़कात निकाल दी जाए तो जिस माल से ज़कात निकाल दी जाती है वो माल चोरों और नकबजनों से महफूज हो जाता है। और जब मोमिन अपने जिस्म की ये ज़कात अदा करता है तो मोमिन शैतान के दाने फरेब से, शैतान लईन के दाने फरेब से महफूज हो जाता है। इसीलिए रोजे के फवाइद के ताल्लुक से रब इरशाद फरमाता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा और तहारत की दौलत नसीब हो जाए, तुम्हें रहमत खुदाबंदी हासिल हो जाए। और इस रोजे के बदौलत तुम्हें तुम्हारे आमाल स्वालिहा, इस रोजे के हवाले रोजे के ताल्लुक से, इस रोजे के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे साबिक़ा गुनाहों को माफ फरमा देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े खुशनसीब है वो हजरात जो इस मुक़द्दस महीने को पा करके इस महीने का एहतराम करते हैं और बड़े कष्ट व एहतशाम के साथ इस महीने की हर नवाफिल, हर सुनन, हर फराइज, हर वाजिबात को उसके सही औकात में अदा करते हैं। बड़े खुशनसीब है कि जो लोग रोजे को रखते हैं पाबंदी के साथ और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये रोजा और कुरान हश्र के दिन बंदे की शिफात करेगा। हजरात बड़े खुशनसीब हुआ वो लोग जो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं और रमजान मुबारक के महीने का एहतराम के साथ, पाबंदी के साथ रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये कुरान और रोजे अल्लाह की बारगाह में उस बंदे के लिए शिफात करेंगे कि जो कुरान मुक़द्दस को अपने सीने से लगाते हैं, मोहब्बत के साथ उसकी तिलावत करते हैं और एहतराम के साथ इस महीने का पाबंदी के साथ रोजा रखते हैं। कुरान रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ऐ मौला मैंने इसे शहवाज से रोका और रात में सोने से रखा, मौला इसके हक में मेरी शिफात कबूल फरमा। रोजा अर्ज़ करेगा, ऐ मौला मैंने इसे दिन में खाने से रोके रखा, शहवाज से रोका, मौला मेरी शिफात को तो इसके हक में कबूल फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बस दोनों की शिफात रब की बारगाह में मकबूल होगी। हजरात ये रोजा और कुरान बंदे की शिफात करेगा और अल्लाह की बारगाह में दोनों की शिफात कबूल होगी। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं मन सामा रमजाना व इहतिमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स ईमान और इहतिसाब के साथ रमजान के महीने का रोजा रखेगा, परवरदिगार आलम उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ फरमा देगा। हजरात एक और हदीस पाक में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखेगा, रब तबारक व तआला उसको आग से 70 साल की राह से दूर फरमा देगा। एक दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखेगा, मौला तबारक व तआला उसके और आसमान के दरमियान एक खंदक बना देगा, जैसा कि जमीन और आसमान के दरमियान का फासला है, इतनी बड़ी खंदक होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअद्दिद हदीस पाक में रोजे के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यही वो मुक़द्दस महीना है जो अपनी रहमतों और बरकतों के लिए हुए हमारे और आपके दरमियान से रवा दवा है, चल रहा है। लेकिन आज हमारे कितने प्यादर ऐसे हैं, कितने हजरात ऐसे हैं जो न रोजा रखते हैं, न रोजे का एहतराम करते हैं और उन्हें जरा बराबर गैरत भी नहीं आती, न उन्हें नमाज से मतलब है, न रोजे से मतलब है, न किसी सुन्नत और वाजिबात नवाफिल से मतलब है। खुले हुए रोड पर खाते पीते उन्हें शर्म भी नहीं आती है। कोई पान दबा करके मुंह में चल रहा है, कोई सुर्ती दबा करके मुंह में चल रहा है, कोई सिगरेट पीते हुए नजर आ रहा है। नाम पूछे तो बताएंगे मेरा नाम अब्दुल सलाम है, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मेरा नाम मुहिब्बुल्लाह है, मेरा नाम। हजरात अगर किसी का नाम
तो बराए करम अपने ऊपर नहीं लेंगे। मैं किसी जाती शख्सियत की को नहीं कह रहा हूँ, मैं तमसीलन एक नाम आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। नाम इतना अच्छा बताएंगे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अब्दुल रहमान मेरा नाम है, अब्दुल सलाम मेरा नाम है, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप दादा मुसलमान थे। हजरात तुम कैसे हो? तुम्हारी गैरत कहाँ खो गई? तुम्हारी ईमान हरारती कहाँ चली गई? तुम कैसे मुसलमान हो? रमजान मुबारक का महीना है, तुम खुले हुए आम रास्तों पर खाते पीते हुए नजर आते हो। आइए मैं आपको एक रवायत आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी एक किताब नुज़हतुल मजालिस किताब का नाम याद रखें। हजरत अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नुज़हतुल मजालिस में एक रवायत नकल करते हैं कि बुखारा शहर के अंदर एक शख्स, एक यहूदी का बेटा रमजान मुबारक में मुसलमानों के बाजार में सरेआम खा रहा था। उस बेटे के मजूसी बाप ने जब उसे देखा तो करीब गया, एक थप्पड़ रसीद किया उसके चेहरे पर और सख्ती के साथ तंबीह किया कि तुझे मालूम नहीं है ये मुसलमानों के रमजान मुबारक का महीना है, ये मुसलमानों के रोजे का महीना है और तुम खुले आम बाजार में खाते पीते हुए नजर आ रहे हो। उस मजूसी बाप के बेटे ने अर्ज किया, अब्बू जान आप भी तो रोजा नहीं रखते हो, आप भी तो रमजान मुबारक में खाते पीते हुए नजर आते हो। उस बेटे के मजूसी बाप ने कहा, ठीक है मैं रोजा नहीं रखता हूँ, मैं भी खाता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह सरेआम नहीं खाता हूँ, बल्कि घर में मैं बैठ करके खाता हूँ ताकि कोई शख्स मुझे देख ना सके। हजरात कुछ दिनों के बाद उस मजूसी का इंतकाल होता है, उसका इंतकाल हो गया, दुनिया से कुछ कर गया। एक शख्स ने काफी दिनों के बाद उसी मजूसी को ख्वाब में देखा। देखता क्या है कि वही मजूसी जन्नत में टहल रहा है। उन्हें बड़ी हैरत हुई, उन्होंने सोचा ये तो मजूसी है, जन्नत में इसका दाखिला कैसा हो गया? बरसात था। उन्होंने इतराज किया, ऐ मजूसी तू ये बता, तू मुसलमान न था, तू ईमान कब लेकर के आया? आखिर तू जन्नत में कैसे आ गया? जन्नत में तेरा दाखिला कैसा हो गया? हजरात गौर करें, इस वाक़ये से इबरत पकड़ें। उस मजूसी ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मरने से पहले ईमान लाने की तौफीक बख्शी और मेरी मौत जो है हालत ईमान पर हुई। मैं रमजान मुबारक के महीने का एहतराम किया करता था और इसी रमजान मुबारक के महीने का एहतराम करने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जन्नत अता फरमा दी, इसके सिले में जन्नत अता कर दी है। हज़रात एक मजूसी अगर रमजान मुबारक के महीने का एहतराम करता है तो उसे ईमान लाने की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा देता है, वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता है और रमजान मुबारक के महीने का एहतराम करने की वजह से उसे जन्नत अता फरमा देता है। तो आप गौर करें, जो नबी का वफादार होगा, जो नबी का गुलाम होगा, जिसके दिल में नबी का इश्क होगा, नबी की मोहब्बत होगी, तो रमजान मुबारक का महीने, रमजान मुबारक का रोजा रखेगा और नबी की मोहब्बत की गुलामी का पट्टा उसके गले में होगा, तो वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? जरूर उसे जन्नत मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम और आप अपना नाम मुसलमान रखे हुए हैं, जो लोग रोजा नहीं रखते उन्हें सोचना चाहिए कि हम रोजा नहीं रखते, अगर उनके पास कोई मर्ज है, कोई बीमारी में मुब्तला है, तो हाँ शरीयत ने छूट दी है कि अगर बीमार है आप या मुसाफिर है तो उतने रोजों की कज़ा और दिनों में आप मुकम्मल कीजिए। बीमार है तो थोड़ी सी राहत है शरीयत की जानिब से। अगर कोई मर्ज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और आप रोजा नहीं रख सकते हो तो सरेआम मत खाइए ताकि एक दूसरे मुसलमान को एहसास न हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर इंसान की नेकियां 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ाई जाएगी, लेकिन रोजा वो चीज है, रोजा वो इबादत है कि रोजे के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अस्सौमु ली व अला अज्ज़ी बिही। रब इरशाद फरमाता है रोजा मेरे लिए है और रोजे की जज़ा बराह रास्त बंदे को मैं खुद अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, बड़े खुशनसीब है वो लोग जो रोजा रखते हैं। हजरात रोजे के हवाले से रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है रोजा मेरे लिए है और रोजे की जज़ा बराह रास्त मैं खुद ही अता फरमाऊंगा। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम सबको, हम सबों को इस मुक़द्दस मेहमान, जब तक ये अल्लाह का मुक़द्दस मेहमान हमारे और आपके दरमियान अपनी रहमतों और बरकतों को लिए हुए तेजी के साथ गुजर रहा है, जब तक ये मेहमान हमारे दरमियान मौजूद रहे, हम बड़े तस्को एहतशाम के साथ, बड़े अदब व एहतराम के साथ, पाबंदी के
साथ इस महीने का एहतराम करें और पाबंदी के साथ इस महीने की हर नवाफिल और सुनन वाजिबात फराइज अदा करें। यही वो मुकद्दस महीना है मुसलमानों। एक बंदा बंदे मोमिन अगर एक छोटी सी नफिल अदा करता है तो नफिल का सवाब फराइज के बराबर दिया जाता है। एक फर्ज अगर कोई अदा करता है तो एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर अदा किया जाता है। हजरात, ये मौका बार बार नहीं आता है, ये महीना बार बार नहीं आता है, साल में एक बार मुयस्सर आता है, साल में एक बार हमें हासिल होता है। जितनी नेकियां चाहो तुम कमा लो, जितनी नेकियां तुम्हें हासिल करना हो हासिल कर लो। हजरात, रोजा जो है बंदे मोमिन के लिए सरमाए आखिरत है, सरमाए आखिरत है, तुम्हारे लिए मौका गनीमत है कि तुम ज्यादा से ज्यादा इस महीने का एहतराम करके इसकी हर नमाज को, इसकी हर इबादत को उसके सही औकात में अदा करके अल्लाह की रजा हासिल कर लो, उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल कर लो। मौला तबारक व तआला हम सबों को जुमला बेहयाइयों से महफूज फरमाए और ज्यादा से ज्यादा इस महीने में नेकियां करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ और मस्जिद के हवाले से